नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अजय शास्त्री और आज हम मौजूद हैं नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट में, जहां पर आज काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पे जेनेरिक मेडिसिन की जो है एग्जीबिशन लगी हुई है। और यहां पर पहुंचे हुए हैं आज अर्जुन देशपांडे जी। अर्जुन देशपांडे जो है छोटी सी उम्र में उन्होंने एक जेनेरिक जो मेडिसिन होती है उसका जन्मदाता कहें तो कम होगा, क्योंकि उन्होंने एक जेनेरिक मेडिसिन को एक नया रूप दिया है। और आज टाटा, जो आपने सुना होगा टाटा रतन टाटा जी हैं, उन्होंने हाथ मिलाया है, हाथ मिलाकर वो चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जेनेरिक मेडिसिन को एक आधार मिला है वो बहुत बड़ी बात है कि आज पूरे देश के अंदर जो है एक छोटी सी उम्र में 16 साल के जो हमारे अर्जुन देशपांडे जी हैं उन्होंने एक नई क्रांति लाई है। तो अभी हमारे पास में आने वाले हैं अर्जुन देशपांडे जी, हम आपको रूबरू कराएंगे बहुत जल्दी। आप वेट कीजिए सिर्फ 2 मिनट का। देखिए हमारे बीच में अर्जुन देशपांडे जी पहुंच गए हैं। अर्जुन देशपांडे जी को हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है और अपने आप को एक नया रूप दिया है। बहुत बड़ा इवेंट है जो कि इन्फोर्मा ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसमें मैं आया हूँ आज। तो यहाँ पर बहुत खुशी हो रही है। एक फार्मा का जो ग्लोबल लेवल में इंडिया का बहुत फार्मास्यूटिकल में नाम है, तो इसका आज हम लोग इनॉग्रेशन करने वाले हैं। और एक फार्मा को इंडिया में नई एक उछाल देने का मोदी जी के कार्यकाल में हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर एक अच्छा चीज़ है। अभी मतलब पूरे इंडिया में आज 19 ईयर्स में हम लोग ने क्रांति ला दी है फार्मा इंडस्ट्री में, रतन टाटा सर के ब्लेसिंग से। तो अभी हम लोग 150 प्लस सिटीज़ में प्रेजेंट है। अभी हम लोग हर एक मैन्युफैक्चर को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेके काम इसमें MNCs are there, all of them. Then you have IDMA, which is probably yours. Then you have FOP. FOP is in this area, it's him and him, right? And then there's from Excel. Excel is one of them. Yes, and a very warm welcome to each of you. May I please request all of you to take out your hands. Do try and maintain social distance because we all want to make sure that we are safe. And as we get all started, may I once again request our audience at the back end to please sitting close to each other so much more. I do once again wish to extend this hearty welcome right here in Delhi NCR. Mr. Rahul Deshpande, Group Director in Pharma Markets in India. Mr. Ritesh Modi, Director Finance in Pharma Markets. Capturing these beautiful moments in a big frame right there, along with game changers from the pharma industry. Excuse me, sir. All the various sectors of pharma, be it APIs, excipients, fine chemicals, FDF, natural extracts, machinery, and lab equipment. So this year, despite all the challenges that we have seen, the pandemic here, we have got 550 exhibitors from 16 countries coming in. We have a pre-registration of more than 30,000 visitors. So that is what is expected to come over this next 3 days at this show. We have support of all the leading associations, including Pharmexil, which is the leading body for pharma exports in India. Please join me in welcoming all colleagues from the pharma industry who joined us here for this media briefing. I have to the left of me, P.S. Chakravarti, Global Ambassador, World Packaging Organization. To the right of me is Mr. Satish Wagh, who is past president Chemixil and also chairman and managing director of Supriya Chemicals. I think maybe I'll pass on to each one of them to say a few words, and then will be open to questions. Mr. Chakravarti. Thank you very much. What can I say? Today I am representing a World Packaging Organization
which is a conglomerate in the packaging and innovation with a membership of 62 countries worldwide. And we are very happy to support Informa Markets in India, especially the CPHI PMAX 2021 edition. We never imagined such a big response, 30,000 pre-registered and then 20,000 more. We are going to witness at least 50,000 visitors this year as well. Who said pandemic is still existing? First of all, I would thank you CPHI for organizing such a great event. Mr. Yogesh ji, Chakravarti ji and Mr. Wagh ji, who have been great experience into the industry, and for supporting the pharma industry altogether. All the pharma people are coming together on this 3 days to take the Indian pharmaceutical industry to the next level. And when we see the manufacturers are coming, developing the new technology for entire world. So as we know, India is one of the biggest pharmaceutical exporter and manufacturer of generic medicines to entire world, and 1/3 and now increasing exports for entire world has been done by India alone. So from all the developed countries, India is exporting generic medicines, and because of this event the demand and the supply from India will increase definitely very high. So to bring the foreign investments and to take our Indian economy, when our Prime Minister Narendra Modi ji is saying to take our Indian economy to 5 trillion, 10 trillion, this kind of events will really bring a change into the industry and to take our Indian economy to the next level. So I congratulate the entire team of CPHI and Informa Market for organizing such a great events for pharmaceutical industry. Thank you, Mr. Deshpande. Thank you. I'm Dr. Viren Shisha. I'm the Senior Vice President of the Indian Drug Manufacturers Association. We are the largest association of Indian pharmaceutical manufacturers, representing almost 3/4 of the total production of pharmaceuticals in India. At the onset, I congratulate Informa for organizing CPHI India, which was very much necessary in order to move forward. India today is recognized as the pharmacy of the world, and we supply essential medicines to almost 200 countries. This is a almost $45 billion size industry. We almost split equally between the domestic industry and the international the exports that we do. The government of India has set out a very aggressive, very good target of 130 billion by 2030. And as an industry, I am very sure that the industry has the capabilities to reach $130 billion size by the year 2030. And events like this will help India to augment its position from where it is today. Today we are the third largest manufacturer, and we aspire to be number one in the coming years, hopefully by 2030. The pandemic has also posed challenge, at the same time given a lot of importance to the pharmaceutical industry, and we understand the big role that the Indian pharmaceutical industry will have to play in the next 10 years to strengthen its position from number 3 to number 1 by providing quality and innovative products to the world. And I'm sure on behalf of IDMA, I assure you that the industry is ready to take that lead. So thank you once again Informa for hosting this event and helping the industry to network. 1300 किलोमीटर दूर मुंबई से यहाँ पर क्या कहना चाहिए इस आज इवेंट की अगर बात करें? ये बहुत ही अच्छा चीज़, मतलब हर साल फार्मा इंडस्ट्री को एम्पावर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ किया जाता है CPHI, और ये फार्मा का एक सबसे बहुत अच्छा इवेंट होता है जहाँ से अगर आपने देखा होगा तो 550, जैसे मुंजाल जी ने कहा कि 550 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स जो कि फार्मास्यूटिकल के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे कंट्री के फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को पूरे दुनिया के सामने और पूरे ग्लोब के सामने। तो यहाँ से मतलब हम लोग जो कह रहे हैं अभी यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे फॉरेन के ज़्यादा से डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, MOH के पीपल हो, वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए CPHI बहुत बड़े पैमाने पे बहुत काम करेगा, और इसके लिए मतलब हम लोग जो देश में काम कर रहे हैं सब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेनरिक आधार के माध्यम से, वैसा ही एक CPHI का बहुत अच्छा मुहिम है। पूरे देश में एक आवाज़ उठी है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, हर चीज़ें चाहे सस्ता हो, दवाई हो, खाने पीने की चीज़ें हो। तो आत्मनिर्भर की अगर बात करें तो कितना इसमें आपने बातें की आत्मनिर्भर होना, दवाइयाँ सब यहीं पे बने, कुछ दवाइयाँ जो बाहर से आती हैं, क्योंकि दवाइयों को जो अभी जो कोरोना हुआ है, कुछ दवाइयाँ जो बहुत महंगी थी 35,000 की, 3,000 रुपये की दवाई 3-3 लाख तक बिकी है। तो आत्मनिर्भर पे क्या कहना चाहेंगे आप?
आज इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फार्मा इंडस्ट्री में एपीआई का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। आज इंडिया बहुत ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड था एपीआई सप्लाई को लेके, तो अभी गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स के वजह से अभी इंडिया में एपीआई का पार्क बनने जा रहा है। तो इससे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, नहीं तो इंडिया के मेडिसिन के प्राइस है वो बहुत कम रेटों में लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन मिलने को शुरू हो जाएंगे, और इंडिया में जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग का जो संख्या है वो बढ़ते हुए जाएगा। तो इंडिया को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पूरे ग्लोब के सामने हम लोग हमारे मेडिसिन अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर, दवाई के नाम पे हिंदुस्तान में काफी महंगी बेची जाती है हर चीज। 10 रुपए की दवाई करते हैं, मार्केट तक पहुंचते हो तो 100 से ऊपर चली जाती है, 100 गुना ज्यादा पहुंच जाती है। जैविक आधार जो आपने स्टार्ट किया है, इससे क्रांति आ गई है मेडिकल लाइन में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज मतलब हम लोग जो मैन्युफैक्चरर्स है अभी, मतलब यहाँ पर जो इतने WHO GMP मैन्युफैक्चरर्स है, USFDA अप्रूव मैन्युफैक्चरर्स है, जो कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग की वो बहुत बेसिक होती है। तो अभी हम लोग जो ये मैन्युफैक्चर से बल्क में प्रोडक्ट्स लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस के ऊपर, और हम लोग लोगों तो पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है CPHI का, जहाँ पर बहुत मैन्युफैक्चरर्स अंडर वन रूफ आते हैं। और जेनरिक आधार का एक मोटो तो हमेशा रहा है कि हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने का। तो हम लोग अभी हर एक मैन्युफैक्चरर सपोर्ट करके उनको एक आत्मनिर्भर भारत के साथ में जोड़ने का एक काम कर रहे हैं। जी, आपने एक सपना है जो साकार हुआ। हाँ आपकी उम्र 19 साल है, तो 5 साल 6 साल 10-12 साल आपको लगे हुए इसको, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। जो बच्चों की खेलने की उम्र होती है आपने सोचना शुरू किया, तो क्या कहना चाहिए, आगे सोच क्या है आपकी, फार्मे में आप क्या लाना चाहते हैं, इसके अगला स्टेप क्या है, क्रांति क्या है? आज 130 करोड़ ऑफ द पीपल को हम लोग एफोर्डेबल मेडिसिन का लाभ देना चाहते हैं हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर से। जब हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ 1/3 मतलब मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड, जेनरिक मेडिसिन का मतलब हम लोग पूरे इंडिया से आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं मेडिसिन का, बट हमारे लोगों को, हमारे इंडियन लोगों को ही एफोर्डेबल रेट्स में मेडिसिन नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ा कारण है। अभी आपने अगर कोविड के टाइम में देखा होगा, रेमडेसिविर जैसी चीज़ वो लोग मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बहुत सस्ते दामों में बेचना चाहती थी, बट ब्लैक मार्केटिंग की वजह से वो एंड कस्टमर तक पहुँच नहीं रहा था। तो हम लोग ने हमारे मुहिम से बहुत रेमडेसिविर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की कि ब्लैक मार्केटिंग वो चीज़ से बंद हो। तो मैं जेनरिक आधार को अगले 5 साल में यही देखता हूँ कि यहाँ से एक क्रांति हम लोग ने ऑलरेडी ला दी है, और हर एक सीनियर सिटीजन्स ने तो पेंशन होल्डर्स को इनकी हम लोग एक नीड सॉल्व करके एफोर्डेबल मेडिसिन देना चाहेंगे। सो ये एक्चुअली द फोकस ऑफ दिस इवेंट विच ये साल के पूरा इनोवेशन पे है। तो इनोवेशन अभी देखेंगे, जो ये 2 साल में इंडियन फार्मा कंपनी उभर के आई है जो इनोवेशन कर रही है, तो ये हमारे फार्मा इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी वो भी बताएंगे जो नई नई इनोवेशंस हो रही है। पूरा फोकस ये सब इनोवेशंस पे है। जो सारी कंपनीज है नए इनोवेटिव प्रोडक्ट दिखा रही है, जो API में हो, मशीनरी में हो, क्या इसमें कुछ चैलेंजेस पे भी बात होगी, क्योंकि कोविड के बाद से ये पहली बार इवेंट हो रहा है, जैसे आपने सुना, तो क्या चैलेंजेस? तो चैलेंजेस ऑफ कोर्स फार्मा इंडस्ट्री के लिए मे बी आई थिंक आई लीव इट टू द एक्सपर्ट्स व्हाट आर दे फेसिंग रादर देन माय गिविंग हाफ नॉलेज। आई थिंक देखिए, इसमें इंटरमीडिएट्स के ऊपर बेसिकली भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और जो स्कीम्स आ रही है उसकी वजह से अभी आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तब इंटरमीडिएट्स बेसिक जो है वो इंडिया में बनने शुरू हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 3 फार्मा पार्क वो बनाएंगे, वो भी 1500 एकर्स के। तो ये 3 फार्मा पार्क जो बनेंगे, इसमें काफ़ी एडवांटेज मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, इंसेंटिव्स भी मिलने वाले। आप इंसेंटिव भूल जाइए, लेकिन क्या होता है कि एक सस्टेनेबिलिटी मिल जाएगी कि एक जगह मिले, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छी आ जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को काम करना इजी हो सकता है। और यही वजह से फ्यूचर के लिए जो इंडिया का जो ग्रोथ है फार्मा का, वो अच्छा रहेगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि मेडिकल क्षेत्र में अगर दवाइयों की जो बात करते हैं, अर्जुन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये 19 साल के हैं, उनकी इच्छा है आत्मनिर्भर, और वो स्कीम के लिए अपना वो स्प्रेड करना चाहते हैं अपना विंग। और ऐसे अगर युवक आगे आके अगर कुछ सोचते हैं तो मुझे पक्का मालूम है कि वो अपना गोल है वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी एक इंसान 22 साल पे इनकी उम्र में ही मैं एक इंडस्ट्री में जब आया था, तब मैंने 9-10 साल नौकरी की थी। आज मैंने अपनी 600 करोड़ की कंपनी बनाई है, और मुझे एक आनंद है बोलने में कि दुनिया चाइना से लेती है, लेकिन हम चाइना में 80 करोड़ का माल बेचते हैं। हमने हमारे APIs में 7 APIs 2-2 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करके रजिस्टर किए हुए हैं, और आज नहीं 10 साल से बेच रहे हैं।
एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन क्या है उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी, एक कंटिन्यूस अपने दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करनी चाहिए। मैं जानता हूँ, देखिए मैं 24 साल केमेक्सिल जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसके ऊपर मैं 32 बिलियन एक्सपोर्ट दिखता था। जब मैं ये देख रहा था 24 साल पहले, तब फार्मा भी मेरे पास ही था, फार्मा मेरे से सेपरेट हुआ था। आपको एक कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़रूरत आज इंटरमीडिएट्स की भी इस देश को है। बिना इंटरमीडिएट आप एपीआई नहीं बना सकते, तो इंटरमीडिएट के ऊपर फोकस होना चाहिए, जिससे क्या है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया और इंडिया की सस्टेनेबिलिटी बन सकती है। उसके लिए पॉलिसीज़ है ना, वो एकदम क्लीन आनी चाहिए। पॉलिसीज़ में क्या होना चाहिए कि अगर ये एक पेपर फाइल किया तो 3 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं आया तो चौथे दिन डीम अप्रूवल होना चाहिए, उसे पॉलिसी कहते हैं। वैसी गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसी लाई तो आप देख लीजिए अगले 2 साल में कितनी उन्नति फार्मा, एपीआई और इंटरमीडिएट्स में होगी। मतलब यहाँ से निर्यात किया जाएगा, आयात नहीं किया जाएगा? 100% हो सकता है, पॉसिबल नहीं रहेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको यही कहा ना कि पॉलिसीज़ क्लीन होनी चाहिए। पॉलिसीज़ में कैसा है, देखिए हम ऑनलाइन में सब है मानता हूँ, लेकिन कैसे एक कोई भी पेपर जमा किया, उसको एक 7 दिन का मुदत दिया, 7 दिन में अगर कोई जवाब नहीं आता है डीम अप्रूवल हो जाएगा, तो क्या होगा, फास्ट ट्रैक चलेगा। आज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन जो है उनके पास पैसा है, टैलेंट है, हार्ड वर्किंग है। अब अगर देखेंगे तो पूरी वर्ल्ड में 3 कंट्री के लोग घूमते हैं, एक जापान, एक चाइना और एक इंडियन। तो हम सब जगह कर सकते हैं जाके काम, और हमने दिखाया है वर्ल्ड को। आईटीबीटी में आप देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे है। वैसे फार्मा में भी हम नंबर 1 पोजीशन कर सकते हैं। पॉलिसीज़ के हिसाब से अगर सस्टेनेबिलिटी हो गई तो इंटरमीडिएट के ऊपर अभी फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट्स अगर हम बनाएंगे तो एपीआई हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और कॉमन मैन को आप जो कहते हैं सस्ता चाहिए, हम सस्ता ज़रूर दे सकते हैं ना, क्यों नहीं देंगे। मेंटालिटी में अगर हम देखो तो मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मेरे देश को मैं आत्मनिर्भर करूं और सस्ते दाम में बेचूं, और वह हो सकता है। अच्छा, कितने आउटलेट है अगर ग्राहकों को डायरेक्ट अगर उसका लाभ मिले? अभी हम ये चीजें जब से 4 साल से क्रांति आई है, आपको देखकर काफी सारी कंपनियां हैं, उन्होंने भी जर्नी स्टार्ट किया है कि हम कम सस्ते, कम 100% आधे में दवाइयाँ देंगे। तो ये अगर बात करें, कितने आपके सेंटर हैं अभी तक और कितने और खोलने का इरादा है? अभी हम लोग 150+ सिटीज़ में काम तो कर ही रहे हैं, और ऐसे हम लोग अभी पूरे इंडिया में मतलब 300+ सिटीज़ में एक्सपैंड करते जा रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च भी किया, जो छोटा रिटेलर है हमारा उनको सपोर्ट हो उससे, और हम लोग एक एग्रीगेट करते छोटे रिटेलर्स को हम लोग एंड कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। सो B2B2C जब हम लोग कहते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री में एक न्यू इनोवेशन हम लोग ने लाया है, फ्रॉम द डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू द एंड कंज्यूमर, क्योंकि आज मैन्युफैक्चर को भी ज़रूरत है कि हम MNC मुक्त होने के लिए और हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को देने के लिए, तो मैन्युफैक्चर टू द एंड कंज्यूमर ऐसा हम लोग संकल्प कर रहे हैं। ठीक एक है, सवाल अगर मैं पूछता हूँ, जर्नी आधारित क्यों ले लो? इसमें क्या खूबी है? जैसे हर किसी को अपना बच्चा अच्छा लगता है, आपसे अगर बात को जर्नी का आधार की जो दवाइयाँ हैं जो आपका है, तो उसके बारे में क्या है, अलग चीज़ें क्या हैं? मैं ये चीज़ के बारे में कहूँगा कि आज ये इवेंट है तो CPHI के बारे में मतलब मैं ये इसके लिए यहाँ पर आया हूँ कि CPHI को बहुत बहुत मेरे तरफ से मैं कॉन्ग्रेचुलेट देना चाहूँगा। जेनरिक आधार के बारे में डेफिनेटली मैं आपसे अलग बात करता हूँ ये चीज़ को लेके, और एक CPHI को मतलब मैं एंड में ये कहना चाहूँगा बहुत बहुत अच्छा एक टीम वर्क है, और एक फार्मा इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए हम लोग का जेनरिक आधार ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा फार्मा इंडस्ट्री ग्रो हो, क्योंकि जेनरिक आधार तो उसके लिए हम लोग ने एक नींव रची है, सब लोगों को एफोर्डेबल मेडिसिन, बट जो नींव रचने के लिए जो पहले से है जो फार्मा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स है, तो उनको हम लोग को सपोर्ट जितना मैं कर सकता हूँ मेरी तरफ से उतना मैं करूँगा, और पूरी हम मतलब पूरी टीम करेगी सब लोगों की। सर नई रणनीति क्या है? फार्मा इंडस्ट्री की क्या, सर आपने कहा कि नई पॉलिसी बने, तो क्या मांग है, कोई मांग है इस तरह की जिससे कि आगे बढ़ाया जा सकता है, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा। जैसे अभी मिस्टर वाघ ने बताया, इंटरमीडिएट्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो दैट इज़ वन थिंग, एंड आई थिंक डेफिनेटली टैक्सेशन इज ज़्यादा इशू। आई थिंक टैक्सेशन इज यूनिवर्सल, जो टैक्स रेट्स अगर जो इम्पोर्ट्स पे अगर कुछ सब्सिडीज आ जाए डेफिनेटली देन दैट विल हेल्प अस क्रिएटिंग मच मोर APIs, एंड अपना फोकस अभी API इम्पोर्ट्स पे है, इम्पोर्ट्स कम करना है। I'm Chakravarti, ABPS. I'm a global ambassador of World Packaging Organization, which has 62 countries as members. We are very heartfully thankful to the CPHI management for being partners of that. And you just now asked, I myself being a CEO in one of the pharmaceutical industry, I belong to this industry.
you told just now, Mr. Deshpande, 29 years old. At the age, he's still dreaming. He's already contributing. Why not? So this is what the Indian pharmaceutical industry is rising to the occasion. If you see my friends, be it Mr. Satish Reddy, be it Mr. Glenn Salthan of Glenmark, or Mr. Satish Reddy, the chairman of the Dr. Reddy's laboratories, they're all very young, less than 50 years old. And the future belongs to the young CEOs. If you see Mr. Sharvil Bhai Patel, who is the son of Dr. Pankaj Bhai Patel of Zydus Group, and if you see Samina Hamid from the Cipla, Yogesh Agarwal from Ajanta Pharma, Arjun Juneja from the Juneja's family, from Mankind, Mr. Sharad from Aurobindo, and Dr. Kiran from Divi's Laboratories, the largest API manufacturer. These are all younger people, around 40 years, 35 years old. And these people have lot of aspirations. They have seen the world, but they have grew up under their father's guidance. Even if you take Mr. Satish Walks, both the girls, both the daughters are working, and their aspirations are much more. They are correlating what is happening over worldwide. They have been observing what is the need. And just now, the last week, Dilip Bhai, Mr. Sanghvi ji of Sun Pharma, Satish Reddy, Glenn Saldan, Mr. Gupta of Lupin, they all told what they told. Innovation is the key. Already, there is 13 to 15% of the contribution is coming from innovative products, not just from generic products. The future belongs to innovation, and India Pharma is vibrating with a lot of innovations. A platform like CPHI, PayMac platform, is connecting the dots, bringing together all the technologies at one place, a great knowledge exchange form, the CEO roundtable where the top CEOs in Indian Pharma are participating. They are going to discuss and deliberate and share the knowledge. As Mr. Mudras told, a white paper is going to be released after that to set the tone, to set the way forward. So the pharmaceuticals is buzzing with a young blood, and these are the people who are going to set the tone for the future of India to become the number one pharmaceutical industry in the world. क्या प्लान है आगे आपका, कुछ दिमाग में होगा कि? डेफिनेटली आई थिंक आज जैसे बताया आज IBPSC ने कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर हैं. अर्जुन जी ने तो कमाल कर दिया है एट दिस स्टेज. आई थिंक सो डेफिनेटली विल आज ही हमारी मुलाकात हुई है. अभी बैठ पर डे 2 से 3 आउटलेट का ओपनिंग करते हैं पर डे. तो आज देखेंगे हमारा आज इन्फॉर्म मार्केट हम लोग 16 अलग अलग इंडस्ट्रीज में शोज करें, लेकिन ये फार्मा हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है और अर्जुन जी का भी वही सबसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ज़रूर करेंगे साथ में. मैं यहाँ पर कहूँगा डेफिनेटली CPHI को, मतलब आप अभी फार्मा में स्टार्टअप्स इज ऑल्सो कमिंग, सो CPHI फॉर स्टार्टअप्स. इसमें मैं आपको एक ग्रेट एनकरेजिंग प्लेटफॉर्म. इसमें मैं एक आपको कहना चाहता हूँ भाई साहब, देखिए पहले जो था, एक आप 10-15 साल पहले देखो, जो मैंने देखा है मेरी एक एज में, हम हमारे बच्चे लोगों को US और UK भेजते थे पढ़ाई करने को. वो जो जाते थे ना वापस नहीं आते थे, वो कहते थे बाय बाय, हम उधर ही सेटल होते. लेकिन आप अभी ये देखना चाहिए कि लास्ट 5-7 साल में जो एक यंग ब्लड जो खड़ा हुआ है, वो ये कहता है कि मैं मेरी जो ओरिजिनल इंडस्ट्री है, मेरे पेरेंट्स ने जो खड़ी की है, उसको मैं चलाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ. और ये जो चेंज है ना, ये एक मैसिव चेंज है. अगर बात करें मेडिकल की तरफ से, अगर आप सब दवाइयों की बनाने विक्रेता हैं, बनाने वाले हैं सब, तो कोरोना खत्म हो चुका है, क्या है पोजीशन, क्या है कोरोना? अभी बहुत सारे जगह देखिए कोरोना का तो माहौल एंड में तो आया है. आपने अगर देखा होगा तो बहुत सारी अपनी इंडिया में जितने आदमी का इफेक्ट हुआ बहुत कम है वैसे अगर देखो तो रेशियो, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम जो खाना वगैरह जो खाते हैं, इसमें ऐसा सब मिक्सचर रहता है जिससे हमारी एक जो पावर जो बॉडी की है वो एकदम सस्टेनेबल है मसाले की वजह से. तो इसलिए हमें उसका इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर के लिए हम तैयार हो जाएंगे.